Dear students, today we are going to discuss our first poem, My Mother at 66, written by Kamla Das. Kamla Das is also known as Kamla Surya, and she was born on 31st March 1934 in Malabar, Kerala. She was an Indian English poet and literature writer, and she has written especially related to human relationship, and because of this she has received many awards as you see here. She was also shortlisted for Nobel Prize for Literature in 1984, and also she got award of Asian Pen Anthology, Kerala Sahitya Academy Award she got in 1969, Sahitya Academy Award or honorary D.Litt by University of Calicut. So in this form, My Mother at 66. This is the theme or main idea of the poem. Aging is an important phase of human life. A person enters his childhood, experiences youth, and where he is full of energy and dreams to have luxury of life. Finally, he approaches his old age and encounters death. Relationship between people becomes stronger at every aspect of life and they can't bear the separation. सो एजिंग एक नेचुरल फेज है लाइफ का. चाइल्डहुड में इंसान एंटर करता है और धीरे धीरे एक यूथ एज और अल्टीमेटली डेथ फेस होती है. और लाइफ के हर फेज पे रिलेशनशिप हमारा स्पेशली जैसे कि आपको टाइटल में शो हो रहा है कि मदर के ऊपर बेस्ड है, तो एक डॉटर और एक मदर का रिलेशन दिखाया है जो कि एक बहुत ज्यादा इंटीमेट होता है. और जब उनसे सेपरेशन होता है तो उसका जो पेन होता है वो it can't be bear. So in this form, the poet relates a personal experience, which is a personal experience of poets itself. She brings out a common paradox of human relationships and portrays a sensational separation of a mother and a daughter. Sensational separation of mother and a daughter. कि एक डॉटर अपनी मदर से अलग हो रही है, तो वो जो सेपरेशन है वो बहुत ही सेंसेशनल है. She has been able to capture almost all the emotions which a daughter is filled with on bidding farewell to her beloved mother. जब वो मदर को छोड़ के जा रही है, हम अभी पोम में पढ़ेंगे, तो बहुत ही ज्यादा वो सेंटिमेंट होती है और उस टाइम वो रियलाइज करती है उस दुख को, उस तकलीफ को. Sometimes we do feel deep sympathy for someone, but we fail to express it in a proper manner, and this happens many a time with us कि कई बार हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन अपने हार्ट में हम उन फीलिंग्स को फील करते हैं. सो हियर इज योर पोएम. लेट्स डू एक्सप्लेनेशन. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. So the reference is poet is going. This is the day on last Friday, and she is going from her parents' home. She is going to Cochin airport in morning, and while she is driving the car, she saw her mother beside me. Situation क्या है कि कोचीन एयरपोर्ट पे पोइटस जा रही है, कार ड्राइव कर रही है और उसके साथ में उसकी मदर बैठी हुई है. और जब आज मदर जब बैठी हुई है तो शी ऑब्जर्व हर मदर वेरी माइन्यूटली, और वो देख के हैरान रह जाती है कि उसकी मदर इतनी ओल्ड हो चुकी है और उसका चेहरा एकदम डल है, एंड ऐसे लग रहा है कि दैट हर मदर वाज नियर हर एंड. और जब ये इमोशन इस तरह की अपनी मदर के चेहरे पे देखती है तो शी वाज फिल्ड विद सैडनेस. उसने पहले कभी शायद नोटिस ही नहीं किया, लेकिन आज वो इस तरह से अपनी मदर को नोटिस कर रही है. एंड व्हाट डज शी नोटिस? डोज, ओपन माउथ, हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. डोज का मतलब होता है ऊंघना नींद में, लेस एनर्जेटिक. ओपन माउथ, ये भी एक लेस एनर्जी को शो कर रहा है कि वो इस तरह से निढाल होके बैठी हुई है. दैट हर माउथ इज ओपन, आर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. कॉप्स होती है डेड बॉडी, और ऐश बोलते हैं राख को. तो एक कॉप्स जैसे डेड बॉडी जो एक नॉन लिविंग
लिविंग नहीं है, वो डलनेस है, जो पेल है उस चेहरे के ऊपर डेड बॉडी के होता है, तो सेम वही जो इमोशन है वो पोएटस अपनी मदर के चेहरे पे देखती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और इतनी ओल्ड दिखाई दे रही है, एज ओल्ड एज शी लुक्ड, जितनी दिख रही है। और उसके मन में एकदम से आइडिया आता है दैट हर मदर वुड डाई, इतनी बूढ़ा की एक डेथ वाली स्टेज है वो आ चुकी है। And when these thoughts came to her mind, she decided to remove these thoughts from her mind. The negativity filled in her mind. And what did she do then? She started looking outside the window from the car. उसने सोचा कि ये तो बड़े नेगेटिव थॉट है, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते अपने पेरेंट्स को लेके कि वो हमसे बिछुड़ जाएंगे तो क्या होगा। ऐसा ही पोएटस के साथ होता है, और वो उसको बड़ी तकलीफ होती है, और वो देखती है कि इतनी ओल्ड हो चुकी है कि शायद अब वो नहीं बचे। इन्हीं थॉट्स को अपने मन से निकालने के लिए शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, put that thought away, remove these negative thoughts from her mind, put that thought away, उन सब negative thoughts को दिमाग से निकाला, and looked out at young trees sprinting. She started looking outside, and what did she see? Young trees are sprinting, moving, walking. It's a scientific phenomenon. When you travel by a vehicle, the standing thing seems to be moving or running. और ट्री स्प्रिंटिंग में यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि ट्रीज को स्प्रिंट चलता हुआ दिखाई दिया है। और एक कंट्रास्ट है कि कार के अंदर, गाड़ी के अंदर जो है वो एक लेस एनर्जी है, इनएक्टिवनेस है, और बाहर क्या है, एक्शन इन लाइफ है। ट्री स्प्रिंटिंग इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ एक्शन इन लाइफ। और एक और हमारा यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस आया है, ये देखिए, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, सिमली है, क्योंकि मदर का जो चेहरा है उसकी जो कंपैरिजन है वो कॉप्स से किया है, डेड बॉडी से किया है। यहाँ पे जो ट्री स्प्रिंटिंग है वो एक सिंबल भी है एक्शन इन लाइफ का, और एक और लिटरेरी डिवाइस जो इसमें यूज हुआ है वो पर्सोनिफिकेशन है। तो बाहर उसको एक एक्शन लगता है, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, मैरी हैप्पी, children are very happy, they are coming out of their homes. So again it is reflecting youth and energy. Coming of children from their houses is a symbol of youth and energy. And after that they reached airport. So the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her when pale face. अब क्या है, दोबारा से जो फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं सिक्योरिटी वाइज, अगेन शी वाज स्टैंडिंग a few yards away from her mother, and again she looked at her, दोबारा से चेहरे को देखती है। और अब फिर से क्या है, वो वैन मतलब कलरलेस, पेल, पीला पड़ा हुआ मदर का बिल्कुल चेहरा है। और अगेन शी कंपेयर्स हर मदर्स फेस एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट, लेट विंटर्स मून से अपनी मदर के चेहरे को कंपेयर करती है। एंड व्हाट इज देयर इन कंपैरिजन, एज लेट विंटर मून देयर इज नो shining, so much shining, and it looks dull because of fog and clouds. In the same manner the glow and the grace has lost away from the face of her mother. जैसे कि विंटर्स में मून है, उसमें इतनी शाइनिंग नहीं होती, वो डल सा दिखाई देता है फॉग की वजह से। और इसी वजह से ऐसा ही उसकी मदर का फेस है, उस पर शाइनिंग नहीं है, ग्लो नहीं है। और इस वजह से वो दोबारा से वही फीलिंग उसके मन में आती है, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था कि जब अपनी मदर का चेहरा एक कॉर्प्स से कंपेयर करती है, तो फिर से दोबारा जो सिमली है वो लेट विंटर मून, लेट मतलब जो काफी देर में विंटर मून है, समर्स में मून बहुत जल्दी हमें अपीयर होता है, लेकिन विंटर्स में जो मून है वो काफी लेट शो होता है। सो फेल्ट दैट फेमिलियर एक, एक होता है पेन, फेमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना, दर्द उसको महसूस होता है। और ये कौन सा है, माई चाइल्डहुड फियर। चाइल्डहुड फियर क्या होता है एक बच्चे का, कि वो एक मिनट के लिए भी अपने पेरेंट्स से दूर नहीं होता, और अगर वो हो जाता है दूर तो उसको बड़ी इनसिक्योरिटी फील होती है। तो ऐसा ही हमारे मन में वो डर आता है जब हम ये देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ओल्ड हो चुके हैं, और अब जैसे कि जो पोएट फील कर रही है कि उसकी मदर शी इज नियर हर डेथ, तो वो एक फेमिलियर, एक जाना पहचाना दर्द, जो कि उसके बचपन का डर भी है कि व्हाट वुड हैपन व्हेन शी वुड लॉस हर मदर। तो ये सब चीजें उसके मन में चल रही हैं। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, बट शी डिड नॉट शो हर फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को दिखाती नहीं है।
सिर्फ वो क्या कहती है, सी यू सून अम्मा. सो व्हाई शी सेज लाइक दैट? बिकॉज शी वांट्स टू हाइड हर फीलिंग. जब हम किसी से दूर जा रहे होते हैं तो उसके सामने हम अपनी फीलिंग्स को, जो इस तरह की डर वाली फीलिंग है, उसको छिपाते हैं, ताकि जिसको हम छोड़ के जा रहे हैं वो मोटिवेट हो सके, वो डरे नहीं. एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. अब क्या है कि जाने से पहले सिर्फ वो स्माइल ही करती है. रिपीटिशन है यहाँ पे, जो लास्ट में लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, स्माइल एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है. और एक पॉजिटिव नोट, जब हम किसी से दूर जा रहे होते हैं तो एक स्माइल करके जाते हैं और एक ये कह के कि हम दोबारा से मिलेंगे. इसमें एक पॉजिटिविटी होती है, एक एश्योरेंस होता है. एश्योरेंस क्या होता है कि हालांकि वो क्या सोच रही है मन में, perhaps she would not be able to meet her mother again, but she is not showing these feelings. That's why she gives assurance to her mother that they will soon meet. See you soon amma. And she smiles एक positiveness को यहाँ पे show करता है. So this is the summary which is written here, which I have explained you. While driving from her parents' home to coaching, she notices her mother sitting beside her, dozing, her face pale like a dead body, and her thoughts far away. This reminds her painfully that her mother is old and could pass away, leaving her alone. किसी भी टाइम उसको छोड़ के वो जा सकती है. Putting that thought aside, she looked outside at young tree, just as I told you. उन thoughts को remove करते हुए वो बाहर देखती है. And what did she see? Trees speeding by and children running out of their homes happily to play. These remind her probably of youth and life, her own younger days probably, शायद, and her mother when she was young. एक वही जो हमने थीम में पढ़ा, ये एक बचपन का टाइम होता है, फिर यंग एज होती है, और आज जो मदर है वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गई है जहां के बाद इंसान की डेथ हो जाती है. But after the security check at the airport, looking back at her mother standing a few yards away, she finds her looking pale like the winter moon. She feels that familiar pain and childhood fear of the thought of losing her mother and of being lonely, just as she had been when she was young, because she was different from other children. She could only keep smiling and tell her, see you soon, knowing full well that she might not see her. हालांकि शायद उसको मन में पता भी है कि वो अपनी मदर को दोबारा से नहीं देख पाएगी, लेकिन उसके बाद भी वो स्माइल करती है. और एक ये जनरल सी भी बात है, जब हम किसी से दूर जाते हैं और अगर हम इमोशनल नहीं होते हैं और इस तरह से स्माइल करते हुए जाते हैं, तो वो जो पीछे रह जाता है उसके लिए भी सही होता है और हमारे लिए भी सही होता है. So here you can find vocabulary. I hope students you must have understood this poem.